No morning can be better when you have more earnings instead of only mornings. Can I request everyone, let's start. Everyone who participated. Now that's it. Please take chairs. I see a lot of members standing. There are a lot of empty chairs. Let's fill it. Yes, over there. Mike, sir. I spoke to many people. I never knew that there are so many members from different categories. So, and for me also, it is something new. When I spoke for Bio, we also have a four-wheeler showroom partnership members, which is here. So, many of them didn't know about it. So, meeting people, discussing about each other, we come to know about businesses, and obviously, there are transformations of business, needs, and everything. So, I think the organizers have done something great, and I am really thankful to everyone. Great. Yeah. Shubham. Sorry.
Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal to everyone. My name is S.P. Batra. My stall is Unify JND Design and Creation. तो कल मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और मेरे को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है इसका, तो मैं सबको थैंक करना चाहता हूँ। और मैंने कुछ चंद व्यापारियों से भी बात की, तो हर व्यापारी में एक अलग खजाना है जो मेरे को बहुत कुछ समझ में आया। टाइम कम है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं Thank you. मेरे कैटेगरी है व्हाट्सएप ऑटोमेशन, तो जो भी लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं वो सारे मेरे कस्टमर्स थे। एंड ड्यूरिंग द कॉन्क्लेव में मैंने ये देखा कि कल तो पूरा दिन बिजी रहे स्टॉल में, इतने सारे गेस्ट आ रहे थे। We'll talk only about the conclave right now. No. I am talking about the conclave. कल I was busy because इतने सारे गेस्ट आ रहे थे, बट आज मुझे ये पता चला हमारे स्टॉल्स में इतने सारे जाने हैं, तो आज का दिन मैं सारे स्टॉल्स विजिट करूँगी एंड बहुत कुछ पता चलेगा। Good morning, everyone. My name is Shubham Katani, co-founder of Exciting Tales. We are a travel company. Stall number is C8. And I think everybody has spoken about this expo, how good it has been organized. I'll keep it short and mention about this conclave. Amazing opportunity to network with all the exhibitors. I think this is an initiative which is done by none. So amazing because we are catering to outside guests. We somehow forget that कि हमारे बीच में भी हम network करके business grow कर सकते हैं. Amazing initiative. I've got some really great connects that will take it up next week. I would request if you can have it again this tomorrow as well. So that's a request from my side. So if you don't respect your business in time, we are very sorry to tell you. Correct? So shall we give it tomorrow 9:30 only? 9:30 or 9:35? So we are reaching here, right? Sir, can we give, I have to ask a follow-up, sir. Sir, can we give 9:30 tomorrow? Both wonderful. So get clap for the OGs of the party. So tomorrow 9:30 on your demand, we will be taking this thing. Okay? Make sure many of you are not very your exhibitors bash. Over to the first row over there. Sir, why don't you say something? Good morning, all my good friends. You know, I am your brand ambassador because I am a journalist from Calcutta in the age of 50. Nobody believe I know, but go to check my Facebook profile. When I am in the age of 15, I started my career from Calcutta. Now I am living in Delhi from last 16 years as a journalist. Today, my stall number B12, I have a unique brand, Police Public Press. And I invite you all of the entrepreneurs. About the conflict, sir. Yes, about that, I just one second. I invite, today I meet all the entrepreneurs, but I invite all of them to recognize their business in my award function at Taj Bandar Police Service. Sir, don't be so busy. Sir, absolutely no. Please only stick to the conclave. I respect you completely. Stick to the conclave. Only feedbacks we are welcoming. Yes, but then We are welcoming only the feedbacks, sir. I really respect you. No stall pictures, sir. no, sir, I'm not doing like that. Can we have some other Praveen, you want to say something? Can we have the mic to Praveen, please?
भी एक आइडिया था, ये भी इसलिए एक हटके था कि आप आपस में एक दूसरे को जानो, बॉन्डिंग करो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड कल भी डेफिनेटली इस तरीके से अपने इवेंट करेंगे। एंड चेतन, आज जो केवल सर का प्रोग्राम होने वाला है 12 बजे के लिए, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी यहाँ पे रहना, बिकॉज यू ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स, कि आप अपने सारे गेस्ट को इनवाइट करो ताकि आपके सारे गेस्ट, आपके फ्रेंड्स जितने यहाँ बैठे हुए हैं, उनके स्टॉल में घूमें एंड एक दूसरे के बिजनेस को आप प्रमोट कर सको। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पूरी ईमानदारी से काम किया जाए तो पूरी कायनात उनको मिलाने में रहती है। ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा। ये केवल नितिन और मनमोहन का प्रयास नहीं है, ये हमारी पूरी टीम है, जो पूरी टीम से हम आप लोगों को कल मिलाएंगे, जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प की है। आज आप एक्सपो में पार्टिसिपेट करते हैं, आप देखते होंगे एक्सपो में पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्क्लेव रूम बना दिया जाता है, पर कॉन्क्लेव नहीं कराया जाता है। व्यापार जोन के टीम मेंबर्स ने एफर्ट लिया, ये कॉन्क्लेव कराया और पूरी हाउस का ओपिनियन यह रहा कि हम लोग फिर से कल कॉन्क्लेव करेंगे। सो इट्स अ गुड न्यूज़। और जितने आपके विजिटर आएंगे वो आपके लिए बोनस है। मैं बोलता हूँ ये जो कॉन्क्लेव आप लोग करोगे ना, यहाँ से धंधा निकाल लेंगे। अगर आप सही तरीके से अपने बिजनेस को पिच करते हो तो अपने यहाँ पर सारे एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं, अपने धंधा निकाल सकते हैं। for allowing me to come to this Vyapar Zone interactive place. When I entered this premises, I was really delighted to see that there are so many stalls here depicting their products or services and of different types and kinds. To be very frank with you, I am not first generation entrepreneur, so I do not have any idea that what an entrepreneur faces in starting his business, that may be in terms of money, that may be in terms of what to do, because fortunately I inherited the business of mining from my father and grandfather. Of course, we have now ventured in steel making and it is being marketed under the brand of Uta Steel. The one good thing that I found for Vyapar Zone, that this is an organization or this is a group which was formed basically to help others. This is very rare. Normally, when we join any chamber of commerce or industry, our focus is that what we gain from that organization. But here, the basic principle of Vyapar Zone is to help others. It is a real model of cooperative, because if one member is supplying some material to some party and they require other material, they are trying to help their other brothers to supply to them. This is really very laudable, and I think this is the essence that we must carry in our life. I have been a Rotarian, and there used to be a four-way test. Is it truth? Is it fair to all concerned?
Is it beneficial? And will it bring goodwill? I think these are the basic principles that a businessman should have. Because if we are true to our profession, if we are true to our business, if we are true in imparting our services, I think God is there, who helps us to proceed further and achieve new heights. I wish Vyapar John a very bright future and success, and hope that now they have 8 chapters, it will double by next year, and I wish you all the best, and I also wish you a very happy new year, which is only 15 years old. Facilitate him with a token of memento and cake. I request all the board members and exhibitors to please take the seat. The next is the Automotive Business Session by Keval Kishan from Automotive Business. To mention few things, Keval Kishanji has been awarded a winning data analyst, TEDx speaker and India's leading business automation coach, who helps MSME owners to run their business smoothly. Over a decade, he has been a huge gap in business processes for SMEs and MSMEs. He worked closely with MSME sectors to identify the exact problems, what is lacking behind to make your business successful. He has explored 35 plus industries to find common theme of the issues they have faced, and over 10 lakh business owners he has automated. Since then, he has been trained 9,500 plus professionals. Guys, you deserve a clap on this, right? And 7 other countries on managing data, teams, operations, sales and admin work. To mention few things only, I think he has more to say on this. I'll cut it short and hand over the stage to Keval sir. Can we welcome him with a round of applause, please? Thank you. Thank you so much, Vyapar Expo team. And how's the Josh? So day 1 of Vyapar Expo was amazing. How was it? So today is day 2 and I am really enjoying meeting new entrepreneurs, business owners. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कोलकाता में. एक यंग एनर्जी है सब में और हर कोई सीखना चाहता है. और ये जो इंडिया का भी अमृत काल चल रहा है, जहाँ पे हर चीज़ ग्रो हो रही है, अगर आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है while enjoying your freedom, तो ऑटोमेशन बिजनेस की एक बेसिक नीड है. कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ से? रेज योर हैंड. ऑसम. मैं अब अगले 1 से 1.5 घंटे का एक सेशन देने वाला हूँ और ये सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आप एक डायरी और पेन के साथ अगर नोट कर लें और एक भी चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट कर लें अपने बिजनेस में या किसी टीममेट को गाइड कर दें तो आपकी इंक्वायरीज भी बढ़ सकती है, आपकी सेल्स भी बढ़ सकती है और आपकी टीम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो सकती है. सो आर वी रेडी टू लर्न ऑन हाउ टू ऑटोमेट आवर बिजनेस? ऑसम, ऑसम. सो कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं. प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज हैव अ सीट. ओके. नंबर 2, एक बार सब लोग अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे कर लीजिए. मैं यहाँ पे रियल वैल्यू डिलीवर करने आया हूँ. सो मैं अपने बारे में कम बात करूँगा और ऑटोमेशन के बारे में ज़्यादा बात करूँगा. एंड नंबर 3, मुझे लगता है कि ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए. सो आई वुड वांट कि किसी का कोई भी सवाल हो तो दे कैन रेज ए हैंड एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग बिजनेस ग्रोथ फ्रॉम मी. सो कितने लोग हैं जो मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए रेडी हैं? ऑसम. आप एक मैन्युफैक्चरर हो सकते हो, ट्रेडर हो सकते हो, सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हो, बट आई हैव बीन इनटू बिजनेस पास्ट 10 years. और जब मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप करियर शुरू किया था तो मैं मारुति सुजुकी, होंडा कार्स, पेप्सी, पैनासोनिक इन कंपनीज को आईटी कंसल्टेंसी दिया करता था. उसके बाद हमने जब एमएसएमई सेक्टर पे फोकस किया तो आई रियलाइज कि एमएसएमई सेक्टर एक तो बहुत बड़ा सेक्टर है, यस और नो, और उनको एक्चुअल रियल चैलेंजेस हैं बिजनेस को चलाने में. डू यू एग्री? तो व्हाइल द एमएनसीज वर बिग पे गिवर्स, दे वर अ बिग पे मेकर्स, बट मेरा जो पैशन है
वो मुझे MSMEs की तरफ खींच लाया। एंड टिल डेट हम लोगों ने 10,000 बिजनेसेस को ऑटोमेट किया है। सो थैंक यू। सो ऑन स्टेज विद मी माय टीममेट तन्मय, you can come. My teammate and our company CTO Tanmay is also here. And that side you can see our stall as well. Thanks to Vyapar Expo, they had invited me as a speaker and they gave us the opportunity to present our solutions as well. So let's get started. डायरी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और मोबाइल पे नोट्स बनाना शुरू कीजिए, बिकॉज नाउ आई एम गोना गाइड यू कि आप अपने बिजनेस में कौन से एरियाज हैं जिन पे आपको ऑटोमेशन करना बहुत जरूरी है। सो आर यू रेडी? ऑसम ऑसम। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे डालने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटो पायलट होने के बाद आप कुछ भी काम नहीं करेंगे। नो, ऑटो पायलट पे डालने का मतलब ये है कि अभी आप अपना टाइम डे टू डे ऑपरेशंस में, फॉलोअप में, टीम मैनेजमेंट में, पेमेंट फॉलोअप में, कौन टीममेट आया कौन नहीं आया, उन प्रॉब्लम्स में वेस्ट कर देते हैं। यस और नो? बट अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो जब आपने बिजनेस शुरू किया था आपका विजन बहुत बड़ा था, आया ना, कि मुझे 1,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, मुझे IPO लॉन्च करना है, बट आपके डे टू डे ऑपरेशंस में इतने साल हो चुके हैं और आप ड्रीम को अचीव नहीं कर पाए। एग्री? तो जब आप अपने ऑपरेशन को ऑटोमेट कर लेते हो तब आपको टाइम मिल जाता है मार्केटिंग करने का, सेल्स करने का, यूट्यूब पे अपना ब्रांड बनाने का, एग्री, अपने चैनल पार्टनर्स बनाने का और अपने आप को अपग्रेड करने का। तो दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ ऑटो पायलट, कि आप डे टू डे ऑपरेशन से फ्री हो जाते हो। आर वी क्लियर? आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि अभी हमें बहुत ज्यादा टाइम डे टू डे ऑपरेशंस में हमारा वेस्ट होता है? रेज योर हैंड। ऑसम। सो यू विल गेट सम अमेजिंग टिप्स ऑन हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू सॉल्व योर। तन्मय एक चेक कीजिए। सो व्हाइल दे आर कनेक्टिंग द स्क्रीन, एक बार डायरी और पेन से 4 वर्ड्स लिखिए। पहला वर्ड है टेक्नीशियन, टेक्नीशियन। सेकेंड वर्ड इज मैनेजर, थर्ड वर्ड इज एंटरप्रेन्योर एंड फोर्थ वर्ड इज इन्वेस्टर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप रिपीट कीजिए। पहला वर्ड कौन सा था? टेक्नीशियन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जो पीछे बैठे हैं वो लोग भी थोड़ा एक्टिव हो जाए। तो एक जेंटलमैन है जिनका नाम है माइकल ई गर्बर, ओके, वो इजराइल से थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी कई साल पहले जिसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया, ओके। सो 2 बुक का नाम मैं बता रहा हूँ। माइकल ई गर्बर की बुक है जिसका नाम है ई-मिथ, EMYTH, लिख लीजिए इसको। इस बुक में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर है जिसने एक बेकरी शॉप ओपन की है, ठीक है। वो पहले बेकरी शॉप में जॉब करती थी, उसको लगा कि मैं अपनी बेकरी शॉप ओपन करूंगी, मैं अपना बिजनेस करूंगी। और 4-6 महीने में वो इतना परेशान हो जाती है क्योंकि उसको इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है, स्टाफ भी मैनेज करना है, क्लाइंट्स भी मैनेज करना है। वो फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे आ जाती है कि वो अपना बेकरी स्टोर अब बंद करने वाली है। फिर वो मिलती है माइकल ई गर्बर से जो उनको गाइड करते हैं कि मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग जैसी कंपनीज ने SOPs और सिस्टम्स के थ्रू कैसे पूरी दुनिया में सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी के रेस्टोरेंट्स ओपन किए। यू गाइस एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू ईट बर्गर्स इन मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट? यस और नो? तो वो स्टैंडर्डाइजेशन ही तो है जो उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। यस और नो? राइट? तो माइकल ई गर्बर ने 3 स्टेजेस बताए जिसके थ्रू बिजनेस ओनर अपग्रेड करता है। पहला स्टेज है टेक्नीशियन। क्या स्टेज है? जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हो आप टेक्निकल काम खुद करते हो सारे, हाँ या ना? फिर आपको लगता है कि मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब मुझे टीम हायर करनी चाहिए। एग्री? जैसे ही आप टीम हायर करते हो आप स्टेज 2 पे चले जाते हो, विच इज
मैनेजर। पर जैसे आप मैनेजर बनते हो वहां पे दो चीजें होती हैं। जब आप टेक्नीशियन थे आप बस कस्टमर्स को मैनेज कर रहे थे, हाँ या ना? जब आप मैनेजर बन जाते हो अब आप अपनी टीम को भी मैनेज करते हो, बट यू डोंट रियलाइज कि आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी नहीं है। आपके पास बस 8 से 9 प्रोडक्टिव घंटे हैं, हाँ या ना? तो अब बिकॉज आप टीम को भी टाइम दे रहे हो, कस्टमर को भी टाइम दे रहे हो, और यहीं पे 90% बिजनेस ओनर्स इसी स्टेज पे कई साल बिता देते हैं और उनको रियलाइज ही नहीं होता कि इससे नेक्स्ट स्टेज भी है जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। आर वी क्लियर? रेज योर हैंड एट द बैक। अब आप में से कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हम मैनेजर स्टेज पे हैं बट एंटरप्रेन्योर स्टेज पे कैसे जाया जाए? हाउ मेनी पीपल वांट टू नो दैट? रेज योर हैंड। शार्क टैंक में जितने भी शार्क्स बैठे हुए हैं आपको पता है हर साल वो 2 महीने शूट पे जाते हैं पर उनका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, यस और नो? सो मैनेजर से एंटरप्रेन्योर अपग्रेड करने के लिए देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। कैन यू नोट इट डाउन? नंबर 1, अगर आपको मैनेजर से एंटरप्रेन्योर बनना है, आपकी टीम का जो काम है, जो उनके टास्क हैं, जिसको हम बोलते हैं की रिकरिंग एक्टिविटीज, उसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए। अगर आपके पास एचआर है तो एचआर का डेली कौन सा काम है, वीकली क्या रिपोर्ट को सबमिट करेगी, मंथली क्या गोल वो अचीव करेगी। अगर सेल्स का बंदा है तो डेली, वीकली, मंथली। अगर ऑपरेशन का बंदा है तो डेली, वीकली, मंथली। नंबर 2, आपके पास हर प्रोसेस के अराउंड ऑटोमेशन होना चाहिए। अगर आपके पास ऑटोमेशन नहीं है सेल्स के अराउंड, टीम के अराउंड, ऑपरेशन के अराउंड, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे टीममेट ने कितना काम किया और उसका कितना इम्पैक्ट आया, हाँ या ना? आपको मैनुअली उससे पूछना पड़ेगा और जब आप मैनुअली पूछोगे आप मैनेजर बन के रह जाओगे, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। एग्री? अब जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेशन में 5 स्टेप्स होते हैं और ये जो अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ ये 99% बिजनेस ओनर्स को क्लैरिटी नहीं होती है। इट इज सो बेसिक दैट पीपल मिस आउट। कितने लोग हैं जो ऑटोमेशन के 5 स्टेप्स जानना चाहते हैं? रेज योर हैंड। पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन। लिखिए, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। डेटा कलेक्शन। लेट्स से आपको हायरिंग करनी है, आपको क्या करना है? हायरिंग। तो आपके पास एक गूगल फॉर्म होना चाहिए जिसमें लोग आपकी कंपनी में वो चीज अप्लाई करते हैं। आपको किसी को काम देना है तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप डेटा एंटर करो और उसको काम पहुंच जाए। हम लोग डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, डायरी पे लिख दिया, एक्सेल पे लिख दिया, हाँ या ना? सेकेंड स्टेप ऑफ ऑटोमेशन इज डेटा मैनेजमेंट। अगर आपके पास इंक्वायरी आ रही है इंडिया मार्ट से या फेसबुक से, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में वो इंक्वायरी घूम रही है तो आप कहीं सेंट्रलाइज एक जगह पे आपको नहीं पता कितनी इंक्वायरीज आई, कितनी कन्वर्ट हुई, हाँ या ना? अब डेटा मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे वी शुड यूज क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। क्लाउड बेस्ड मीन्स ऑनलाइन, जहाँ पे आप अगर गोवा में बैठे हो तब भी मोबाइल पे आपको वो सारी चीजें दिखती रहे, यस और नो? थर्ड स्टेप ऑफ ऑटोमेशन, उससे पहले पहला बताइए क्या था? सेकेंड, थर्ड इज बिजनेस रिपोर्टिंग। बिजनेस रिपोर्टिंग 99% बिजनेस ओनर्स इस थर्ड स्टेप पे फेल हो जाते हैं और इसीलिए वो हायर तो कर लेते हैं पर उनको एग्जैक्ट आरओआई नहीं पता कि मैंने 30,000 रुपये एक एम्प्लॉय पे लगाए, मैंने 3 लाख रुपए डिपार्टमेंट में लगाए, पर उसका कितनी इंक्वायरीज आई, कितना कन्वर्जन आया, क्या रिजल्ट आया। डू यू गाइस एग्री? राइट। फोर्थ स्टेप ऑफ ऑटोमेशन इज नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स। व्हाट इज इट? नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स। आपने किसी टीममेट को काम देना है, अभी आप काम कैसे देते हो? वर्बली या कॉल पे, हाँ या ना? आपने काम बोल दिया यार ये काम ना कल कर देना, एक जीएसटी की फाइलिंग करनी है, कस्टमर से मिलना है, yes or no? Eventually you become chief follow-up officer of
your company? How many of you feel you are a chief follow-up officer of your company? कस्टमर से भी आप फॉलोअप लेते हो, टीम से भी आप फॉलोअप लेते हो, वेंडर से भी आप फॉलोअप लेते हो। आज के टाइम पे मेटा का जो व्हाट्सएप टूल है, व्हाट्सएप कितने लोग यूज करते हैं? रेज योर हैंड। तो व्हाट्सएप अब मैं क्या करूँगा, मैं अब डिपार्टमेंट वाइज अप्रोच लेने वाला हूँ। मैं 4 डिपार्टमेंट पकड़ूंगा और हर डिपार्टमेंट की मैं आपको 3 प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो ऑलरेडी आप फेस कर रहे हो, और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, वो सोल्यूशन जो मैं खुद यूज करता हूँ अपनी कंपनी में। आर वी रेडी फॉर दैट? ओके, सबसे पहला डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। हाउ मेनी फील दैट यू आर नॉट एबल टू बिल्ड योर ब्रांड, you are not able to capture the attention of customer? How many of you want to learn marketing? Raise your hand if you want to nail it. Okay. जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में सबसे बड़ा गेम जो आपको समझना पड़ेगा, अच्छा आप में से कितने लोग जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट, तो वो क्या हो गया, वो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, हाँ या ना? यस और नो? कितने लोग रियल एस्टेट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये प्लॉट खरीद लो, ये फ्लैट खरीद लो, वो है आपका रियल एस्टेट एसेट, यस और नो? आज के टाइम पे इन दोनों से ऊपर और बड़ा एक और एसेट है, एंड डू यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज डिजिटल मार्केटिंग एसेट्स। लिखिए, पहली चीज जो आपको करनी है इन मार्केटिंग, यू नीड टू क्रिएट योर डिजिटल मार्केटिंग एसेट्स। हाउ? कितने लोग जानना चाहते हैं कैसे बनेगा? नंबर 1, आपकी कंपनी का एक लिंक्डइन पेज बनाओ। नंबर 2, आपकी कंपनी का एक इंस्टाग्राम हैंडल बनाओ। नंबर 3, आपकी कंपनी का एक यूट्यूब चैनल बनाओ। लिखना शुरू करो। इम्प्लीमेंटेशन से रिजल्ट आते हैं, ज्ञान सुनने से रिजल्ट नहीं आते। एग्री? आज मैं आपको प्योर एक्शनेबल स्टेप्स बताने वाला हूं, तो आप इंप्लीमेंट करो एंड यू विल सी द मैजिक। नाउ व्हाई लिंक्डइन पेज? बिकॉज अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है तो सबसे बड़ा बॉटलनेक आपको क्या मिलेगा कि आपको अच्छे लोग नहीं मिलते काम करने के लिए। यस और नो? यस और नो? अब लिंक्डइन पेज से क्या होता है, आप या आपकी एचआर कंपनी में जो भी अच्छी एक्टिविटी हो रही है, किसी का बर्थडे है, किसी कस्टमर का टेस्टिमोनियल है, वो लिंक्डइन पेज पे आप डाल सकते हो। उसके बाद आप लिंक्डइन से जब जॉब पोस्ट डालते हो और जब लोग आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्या देखेंगे? आपका लिंक्डइन का पेज, एंड दैट्स वेयर दे विल बी एबल टू सी कि क्या आप एक लाला कंपनी हो या आप जमाने के साथ चेंज हो रहे हो और आप मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हो। आपको क्या लगता है आज की जो जेनजी है, जो यूथ है, वो कैसी कंपनी में काम करना चाहती है? मॉडर्न, स्मार्ट, राइट? अब आप कितने भी स्मार्ट हो, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। तो आपको अपनी कंपनी का ब्रांड एम्प्लॉयज को बेचना पड़ेगा। आर वी क्लियर? एक वेबसाइट लिख लीजिए जिसका नाम है ambitionbox.com। जब भी कोई एम्प्लॉय जो आपके जॉब करना चाहता है वो गूगल पे जब आपकी कंपनी को सर्च करता है तो आपका एक पेज अगर आपने एम्बिशन बॉक्स में बनाया हुआ है, उसमें आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज रिव्यूज डाल सकते हैं कि ये कंपनी इतनी अच्छी है, इस कंपनी में ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट है। तो जो नया बंदा आएगा वो रिव्यूज देख के और इंटरेस्ट शो करेगा कि मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, हाँ या ना? ओके, सेकंड वाज इंस्टाग्राम। कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं? अच्छा, दो चीजें आप समझिए, दो चीजें समझिए। एक होता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, एक होता है लॉन्ग फॉर्म। मुझे आई थिंक सदियां हो गई एक 30 मिनट यूट्यूब वीडियो पूरा देखे हुए। व्हाट अबाउट यू? पर इंस्टाग्राम की रील्स दिन में मैं कम से कम 100 देखता हूँ। यस और नो? राइट? अब आप जब भी किसी कस्टमर से मिल रहे हो, आप जब भी किसी एम्प्लॉय के साथ बैठे हो, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाय नाइस फोन और एक डिजिटेक का माइक खरीद लीजिए। क्या खरीदेंगे? डिजिटेक का माइक, एक रिंग लाइट
और मोबाइल से कनेक्ट करके यू और योर टीममेट कैन क्रिएट 1 to 2 रील्स पर डे और वो आप इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा पूछिए? इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो कस्टमर है जब वो गूगल पे इंटरनेट पे आपको सर्च करेगा, दे विल सी योर फॉलोअरशिप एंड दैट्स वेयर दे विल बी एबल टू सी दैट यू हैव अ ब्रांड। और ब्रांड के साथ क्या आता है? लॉयल्टी। यस और नो? एज अ कस्टमर, आप भी कई लोगों के कस्टमर हो, क्या आप ऐसी कंपनी की सर्विस लेना चाहते हो जिसका सोशल मीडिया पे कोई भी प्रेजेंस नहीं है? Until unless उस कंपनी के पास ऐसी चीज है जो किसी और के पास नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो बेटर कंपनी के पास जाओगे, चाहे प्राइस थोड़ा सा महंगा हो। हाँ या ना? और हमेशा एक चीज याद रखिए, दुनिया में हर चीज में पेरेटो प्रिंसिपल चलता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ 80% चीजें हर जगह अप्लाई होती है, 20% एक्सेप्शन हो सकते हैं। एग्री? सो इंस्टाग्राम के लिए देयर इज एन ऑटोमेशन टूल जो आप लोग यूज कर सकते हो और इस टूल से आपके फॉलोअरशिप भी बढ़ सकते हैं, एंगेजमेंट बढ़ सकती है। उस टूल का नाम है manychat.com, manychat.com, manychat.com। ये टूल क्या करता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? रेज योर हैंड। manychat.com टूल क्या करता है? ये आपके इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाएगा। ओके? अब आपने, आपकी टीममेट ने कोई बढ़िया सी वीडियो बनाई और आपने बोला कि अगर आपको ये PDF, ये ई-बुक चाहिए तो कमेंट करें। तो जब आपका कस्टमर इंस्टाग्राम पे कमेंट करेगा, उसका डेटा मैनीचैट सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा और उस कस्टमर को अपने आप रिप्लाई चला जाएगा। और जब आपकी तरफ से रिप्लाई चला जाएगा तो जो इंस्टाग्राम का सर्वर है उसको लगेगा कि आपके पोस्ट पे इंगेजमेंट आ रही है, तो वो आपकी पोस्ट 10 गुना ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। आर वी क्लियर? सेम केस विद यूट्यूब। सो ये कुछ टूल्स एंड टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपनी मार्केटिंग के लिए। आर वी क्लियर? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग मार्केटिंग? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? यू नीड 2 पीपल। लिखिए, पहला बंदा जो आपको चाहिए मार्केटिंग के लिए, यू नीड अ कंटेंट क्रिएटर। वुड यू नीड? एंड अभी सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है चैट GPT। कौन है? चैट GPT। और जो लोग बोलते हैं कि हमें ये नहीं आता, तो आप ये बताओ आपने इतना बिजनेस बड़ा कैसे खड़ा कर लिया? अगर आप इतना बड़ा बिजनेस बना सकते हो तो चैट GPT तो बच्चों वाली चीज है ना। सीख लो और किसी टीममेट को सिखा दो और उसका KRA बना दो और टास्क डेलीगेशन में डाल दो, उसको अपने आप रिमाइंडर आएंगे, वो काम करता रहेगा। आपका एज अ फाउंडर सबसे बड़ा रोल है, आपको नई चीज क्रिएट करनी है और फिर अपने टीममेट को सिखानी है और फिर एक सॉफ्टवेयर में उसका काम उसका डालना है और वो काम का रिमाइंडर उसे जाए और आपको उसकी वीकली और मंथली परफॉर्मेंस पता चले। समझ आया? ये साइंस समझो। आपको क्या करना है? आपको क्रिएट करना है। उसके बाद जब आप सीख गए, बेसिक समझो, बेसिक, एडवांस मत सीखो, बेसिक समझ के अपने टीममेट को बेसिक सिखा दो। नंबर 2, थर्ड, वो जो काम करेगा उसका टास्क डेलीगेशन सिस्टम में एंट्री कर दो। टास्क डेलीगेशन सिस्टम कितने लोग जानना चाहते हैं? रेज योर हैंड। सो वी हैव स्टॉल देयर, यू कैन कम एंड वी हैव वन ऑफ द मोस्ट यूनिक टास्क डेलीगेशन सिस्टम, जिसमें आप अपने टीममेट को जब टास्क देते हो तो आप वन टाइम और रिकरिंग टास्क दे सकते हो और उनको अपने आप व्हाट्सएप पे रिमाइंडर आता है। एंड जब वो काम कंप्लीट कर लेते हैं, आपको और उसके सीनियर को व्हाट्सएप जाता है और आपके पास हर एक स्टाफ की डेली, वीकली, मंथली परफॉर्मेंस सामने आती है। एक चीज मुझे बताइए, अगर आपके पास अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मेट्रिक नहीं है तो क्या लगता है आपको आपका एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्म करेगा? यस और नो? 2 तरीके से आप एम्प्लॉय से बेस्ट परफॉर्म करवा सकते हो। जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं? रेज योर हैंड। हाउ टू गेट द बेस्ट वर्क डन बाय योर एम्प्लॉय? रेज योर हैंड। नंबर 1, by giving them a target and tracking whether they are able to achieve the target. And number 2 is incentive based. पहला है टारगेट बेस्ड, सेकंड इज इंसेंटिव बेस्ड।
अब जो लोग सेल्स में हैं, किसमें हैं, वहाँ पे इंसेंटिव का मॉडल ज़्यादा बेटर चलता है। बट जो लोग ऑपरेशंस में हैं, मार्केटिंग में हैं, एचआर में हैं, वहाँ पे इंसेंटिव का स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। एग्री? तो वहाँ पे आप टारगेट बेस्ड दे सकते हो, बट टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? उसके लिए शुड हैव अ टास्क डेलीगेशन सिस्टम। आर वी क्लियर? ओके, सो मूविंग ऑन, अब बात करते हैं हम सेल्स डिपार्टमेंट की। सेल्स किस किस को बढ़ानी है? रेज योर हैंड। देखिए, सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कस्टमर का ट्रस्ट। हाँ या ना? मैं ऑटोमेशन पे भी आऊंगा, बट किसको जानना है? ट्रस्ट का फॉर्मूला। हम नहीं वांट टू नो केवल ट्रस्ट कैसे डेवलप करते हैं मार्केट में। कितने लोग जानना चाहते हैं? ये जो मैं पूरी नॉलेज दे रहा हूँ, ये मेरे 10 साल का क्रक्स है। आई हैव इन्वेस्टेड मोर देन 70-80 लाख रुपीज ऑन माई सेल्फ। आई लर्न बेस्ट टू बेस्ट ऑन्टरप्रेन्योर्स। आई हैव इम्प्लीमेंटेड फ्यू थिंग्स। जो चीज़ें मेरे लिए काम की है वो नॉलेज, प्योर नॉलेज आज आपको दे रहा हूँ। एंड क्रेडिट गोज टू व्यापार जोन एंड व्यापार एक्सपो। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। और जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, आप उन्हीं के साथ काम करना चाहते हो। यस और नो? ऐसा आपका कस्टमर भी सोचता है आपके बारे में। दूसरी चीज क्या होती है? कॉम्पिटेंस। आप 10 साल से बिजनेस में हो, 5 साल से हो, बट आर यू ग्रेट एट व्हाट यू डू? यस और नो? वहां पे 2 चीजें काम आती हैं। पहला काम आता है रिव्यूज। क्या काम आता है? रिव्यूज। यहाँ पे आप एक गूगल का फ्री टूल आता है जिसका नाम है गूगल माई बिजनेस। क्या आता है? गूगल माई बिजनेस। वहाँ पे प्रोफाइल बनाइए और अपने हैप्पी कस्टमर से 5 स्टार रिव्यूज दीजिए। उससे क्या बेनिफिट होगा बताइए जरा? वो जो स्क्रीनशॉट होगा वो प्रपोजल में लगाइए, ईमेल के सिग्नेचर में लगाइए, और नेचुरली भी जो कोई सर्च करेगा तो क्या लगता है आपको? आपकी वेबसाइट पहले आएगी या गूगल माई बिजनेस का अकाउंट पहले आएगा? दोनों चीजें टॉप पे आएंगी। यस और नो? तो आपकी रेटिंग से कस्टमर समझ जाएगा हाउ क्रेडिबल यू आर। यस और नो? अब जब आप बहुत स्केल करते हो ना, जोमैटो के लेवल पे जाते हो, जब आपके पास करोड़ों कस्टमर है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को कंट्रोल करना। एग्री? एक छोटी सी ना चाहते हुए आपने गलती कर दी तो लोग अपने फ्रस्ट्रेशन आपके ब्रांड पे निकालेंगे और आपको बहुत गलत गलत बोलेंगे। इट इज़ ओके। जो बिजनेस बिल्ड करता है ना, उसको बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। एग्री? बट अभी आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो आप अपनी रेटिंग्स, रिव्यूज को कंट्रोल करके बैठ सकते हैं। थर्ड सी किसको जानना है? मैं बताऊंगा थोड़ी देर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप ऑटोमेशन में क्या क्या चीजें और कैसे कर सकते हैं। एंड देन आई हैव दीज 15+ टूल्स व्हिच आई विल बी गिविंग टू यू गाइस एंड गाइड यू कैसे आप इन टूल्स को ले सकते हो। एक कोड है जिसपे बहुत बिलीव करता हूं मैं कि आपके अंदर सक्सेसफुल होने की जो डिजायर है वो ज्यादा होनी चाहिए rather than the fear of failure। हाँ या ना? एक कैरेट लेन ब्रांड सुना है आपने? कैरेट लेन, इट्स अ multi-million-dollar brand। I was listening to his founder recently. He said one of the biggest mistake MSMEs make is उनको पता है कि उनके बिजनेस में एक कुछ चाहिए, राइट? और उसके लिए जब वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अगर वो चीज़ नहीं चली, तो उनको ये लगता है कि ये चीज़ मेरे बिजनेस में कभी भी नहीं चलेगी। दे डोंट रियलाइज कि जब उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया, दे डिड नॉट गिव देयर 100%। तो अगर आप दोबारा अटेम्प्ट करें उस चीज़ पे, मार्केटिंग में, सेल्स में, हायरिंग में, इस टाइम आप बेटर कर सकते हैं। आर वी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? राइट? तो हर बात बेटर ट्राई करना है। सो मैं आपको अब कुछ सिस्टम्स दिखाने वाला हूँ जिससे आप अपने पूरे बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे डाल सकते हैं। मीनवाइल एक बार अभी तक जो जो आपने सीखा है अपने साथ वाले बंदे से रिवाइज करो। आई एम गोना गिव यू 120 सेकेंड्स व्हाइल आई एम ओपनिंग इट। जो जो अभी आपने सीखा है जल्दी से रिवाइज करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डू यू एग्री? वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन रिचर्ड ब्रैंसन, जिनके अंडर 400 कंपनीज हैं। कितनी? 400। ही इज आई थिंक 70-80 प्लस एंड ही एंजॉयज हिज लाइफ व्हाइल
he has one EA, कौन? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। उनके साथ वो डेली 90 मिनट्स ब्रेकफास्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो प्रॉब्लम है मुझे बताओ और हर प्रॉब्लम के 3 सोल्यूशन भी बताओ, एंड देन आई कैन गाइड यू कौन सा सोल्यूशन करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद goes out, enjoys his life, and that guy is managing 400 business. अब उनके और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है? हम लोग फोकस करते हैं ऑटोमेशन पे या मैनुअल चीजों पे, वो किस पे फोकस करते हैं? वो कहते हैं मैं ऑटोमेशन भी करूंगा और अपनी टीम को ट्रेन भी करूंगा ऑन हाउ टू यूज दैट ऑटोमेशन। यू गाइस एग्री विद दिस कि हमने सिस्टम्स लगाने तो हैं पर अपनी टीम को भी ट्रेन करना है उसके लिए। तो एक बार आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, आई एम गोइंग टू गाइड यू कि ऑटोमेट बिजनेस प्लेटफॉर्म से आप अपनी टीम को टास्क कैसे डेलीगेट कर सकते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? एट द बैक, ओके, हैव अ लुक। सो लेट्स से आई वांट टू गिव अ टास्क, क्रिएट जीएसटी मंथली रिपोर्ट। सो लेट्स से ये टास्क मैं अपने टीममेट को देना चाहता हूँ एंड हर बार मैं मैनुअली बोलता हूँ कि मुझे 15 तारीख को रिपोर्ट दे दिया करो और हर बार वो टीममेट भूल जाता है। बट नाउ विद टास्क डेलीगेशन सिस्टम यू कैन चूज दैट टीममेट जिसको आप वो टास्क डेलीगेट करना चाहते हो। चेक द इंटरनेट कनेक्शन ऑल्सो, एक बार इंटरनेट चेक करो। Did you connect my mobile? So here, the first thing is you can choose the teammate, you can choose the department, and you can delegate the task. जैसे आप टास्क डेलीगेट करते हो, let him connect with the internet as well. जैसे आप टास्क डेलीगेट करते हो, आपके टीममेट को व्हाट्सएप चला जाता है और आपका टीममेट वैसे भी व्हाट्सएप यूज करता है, yes or no? तो आपको मैनुअली उसको नहीं बोलना पड़ता और साथ में उसको ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स भी जाते हैं। अब जब रिमाइंडर जाता है तो जो काम आप करते थे मैनुअली रिमाइंड कराने का, अब वो सिस्टम करता है। सेकेंड थिंग, एज अ बिजनेस ओनर यू वुड वांट कि आप अपने टीममेट की ड्यूटीज डिफाइन कर दो। व्हेन आई वाज वर्किंग विद पैनासोनिक, थीसन ग्रुप, होंडा कार्स, यू नो उनका एचआर डिपार्टमेंट क्या करता था? उनका एचआर डिपार्टमेंट हर एक एम्प्लॉय का रूटीन टास्क एक्सेल में मेंटेन करता है कि एचआर एग्जीक्यूटिव है, इसका ये रोज के 4 काम है, हफ्ते में 2 काम है, मंथली 1 काम इन्हें अलग से करना है। डेली के काम होते थे जो उन्हें एंट्री करनी है, वीकली के काम होते थे रिपोर्ट और मंथली काम होता था अपनी प्रेजेंटेशन देना। क्या हमने अपने एम्प्लॉयज के ड्यूटीज कहीं डिफाइन किए हुए? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट? यस और नो? नो, राइट? इसीलिए आपको हर बार मैनुअली उनको याद दिलाना पड़ता है। नंबर 2, अगर आपने डिफाइन किए भी हुए हैं, क्या उनको उसको रिमाइंडर जा रहा है? नो। क्या आपको परफॉर्मेंस ट्रैक हो रही है? नो। बिकॉज ऑफ विच टीममेट्स बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। अब अगर आपको टीम की प्रोडक्टिविटी ट्रिपल करनी है तो मैं आपको 3 टिप्स देने जा रहा हूं, लिख लीजिए, नोट इट डाउन। सबसे पहली टिप, आपके जो मैनेजर्स हैं उनको बोलिए कि वो अपनी टीम के साथ डेली हडल करेंगे। क्या करेंगे? डेली हडल। हडल का मतलब एक 15 मिनट की मीटिंग इन द मॉर्निंग एंड एक 15 मिनट की मीटिंग इन द इवनिंग। मॉर्निंग में वो गाइड करेंगे क्या टारगेट है और इवनिंग में वो रिव्यू करेंगे। आप नहीं करोगे। आर वी क्लियर? और आप अपने मैनेजर्स के साथ वीकली मीटिंग करेंगे कि आपकी जो टीम है, जो मैनेजर्स हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ये लिख लीजिए, आपके मैनेजर्स डेली मीटिंग करेंगे और आप अपने मैनेजर्स के साथ वीकली मीटिंग करेंगे। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, you will be able to find out the real root cause and you will be able to improve it. Number 2, अपनी कंपनी में एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जरूर क्रिएट कीजिए। कौन सा डिपार्टमेंट गाइस? लर्निंग एंड, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड udemy.com। कौन सी? udemy.com, udemy.com। वहां पे 500 रुपए से 1000 रुपए तक में बेस्ट कोर्सेज आते हैं।
सोशल मीडिया के, वेबसाइट के, SEO के। आपको देखना है आपका कौन सा टीममेट किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। आप वो कोर्स खरीदिए, उस टीममेट को दे दीजिए। वो टीममेट क्या बोलेगा रिप्लाई में? टीममेट विल से थैंक यू, मुझे ये सीखना था और इस कोर्स की फीस मेरी कंपनी ने पे कर दी। हाँ या ना? पर आप उसको टारगेट दीजिए, कोर्स के बाद 1 महीने के अंदर आपको इस चीज़ को कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है। उससे क्या बेनिफिट होगा? या राउंड ऑफ अप्लॉज हो सकता है इस चीज़ के लिए। Then you can complete this task. So let's say I'll come to that. Let's say आपने यहाँ पर टारगेट डेट दे दिया, yes, क्लिक करो। अब let's say ये ऐसे काम है जो हर मंथ करना है, हाँ है ना? GST रिपोर्ट हर बार याद दिलाना पड़ता है। So this magical feature यहाँ पे आप उस टास्क को डेली, वीकली या मंथली क्यारे बना सकते हो। मंथली पे जाइए, अब यहाँ पे आप रिपीट डेट चूज कर सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पे 5 तारीख लिख दिया। अब हर मंथ की 5 तारीख को उस टीममेट को अपने आप रिमाइंडर चला जाए। आर वी क्लियर? क्या ये चैलेंज है बिजनेस में? यस और नो? कि आप ही को अपने माइंड में सारी डेट्स भरनी पड़ती हैं। याद रखिए, एज एन एंटरप्रेन्योर आपका माइंड बिल्कुल खाली होना चाहिए। जितना आपका माइंड ऑपरेशंस में, फॉलोअप में भरा रहेगा, उतनी क्रिएटिविटी जीरो, उतनी इनोवेशन जीरो, उतना सेल्स की ग्रोथ के पीछे एग्रेशन जीरो। अब देखिए यहाँ पे जब आप किसी टीममेट को भी काम देते हो, आप कैसे काम देते हो? आप कॉल पे काम देते हो, ये सुनो, हाँ या ना? अब आप रात को 11 बजे सोने जा रहे हो और आपको कुछ काम याद आया, फिर कैसे करोगे? हियर विद द वॉइस नोट आप उस टास्क का रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रॉम योर मोबाइल ऐप। वो टास्क का बोल सकते हो कि यार ये काम कर लेना, टाइम पे कर लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एंड वो टीममेट उस वॉइस नोट को मल्टीपल टाइम सुन सकता है। आर वी क्लियर? अभी टीममेट पता क्या बोलता है आपको? अभी बोलता है सर आपने ये तो बोला ही नहीं था, आपने तो कुछ और बोला था, हाँ या ना? बट अगर आपने वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दिया तो आपके पास प्रूफ है कि देखो मैंने यही बोला था, तुमने ध्यान से नहीं सुना, हाँ या ना? राइट? उसके साथ साथ एक बार रिमाइंडर पे क्लिक करो। आपको पता है ये मेरा ऐसा टीममेट है जो भूल जाएगा, तो जो टास्क की डेडलाइन है उससे बिफोर या आफ्टर व्हाट्सएप या ईमेल पे मिनट, डेज एंड आवर्स वाला आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। सो ये प्लेटफॉर्म 10 साल के एक्सपीरियंस पे 10,000 MSMEs को हेल्प करने के बाद जो निचोड़ है ना प्रॉब्लम उस पे बेस्ड, राइट? आप जैसे टास्क दे दिया, साइन कर दीजिए, सो इजीली टास्क डेलीगेट हो जाता है और उस टीममेट को ऑटोमेटेड व्हाट्सएप चला जाता है। आर वी क्लियर? अब इसमें एक बार टास्क डायरेक्टरी पे चलिए। टास्क डायरेक्टरी, सो व्हाट वी हैव डन हियर, हर इंडस्ट्री के और हर डिपार्टमेंट के हमने पहले ही रेडीमेड टास्क डिफाइन किए हुए हैं। इज दैट गुड? एक बार सेल्स डिपार्टमेंट पे क्लिक करो। सो सेल्स के अंदर जो जो टास्क आप दे सकते हो, कुछ बेसिक टास्क हमने ऐड कर दिए। तो जब आप इस पे अपने टीम को लेके आते हो तो आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। डिपार्टमेंट्स में गए, आपने कहा ये हमारा काम है, चलो कॉपी, ये वाले काम भी बढ़िया, ये कॉपी, ये वाले काम भी बढ़िया, ये वाले कॉपी। तो ऊपर हमने इंडस्ट्री वाइज फिल्टर भी लगाया। और जब से हमने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है, अब फाउंडर को पता है कि यार इस डिपार्टमेंट में ये काम तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो यहाँ से उनको आइडियाज़ भी मिल रहे हैं, हाँ है ना? तो हम काम कर रहे हैं 10,000 कंपनीज के साथ, तो हमें पता है कौन सी कंपनी का क्या इनोवेटिव तरीका है, राइट? सो वी आर एबल टू ब्रेक द बेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट्स। How many of you would like to have this thing in your business? Raise your hand. Awesome. Now go back, go to dashboard. Dashboard में जाइए और वहाँ पे लास्ट मंथ पे क्लिक कीजिए। Now अभी तक
मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे ऑटोमेशन के। स्टेप 1 वाज डेटा कलेक्शन, यस और नो? तो आपने जब टास्क डेलीगेट किया, डेटा कलेक्ट हो गया, मैनेज भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या था? बिजनेस रिपोर्टिंग, रिपोर्ट आपके सामने। आर वी क्लियर? अब कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, अभी भी मेरे पास धंधे की रिपोर्ट ही नहीं आती? अकाउंट्स की आती होगी टैली से, पर किस टीममेट ने कितना काम किया, कैसी प्रोडक्टिविटी है, वो नहीं आ पाती। ये सर नो? और वहाँ पे आप देखते हो कुछ स्टार्टअप्स लाइक Zomato is not a startup anymore, but day before yesterday, listen to this, day before yesterday, Zomato's market value has crossed Tata Group. अब दीपेंद्र गोयल से जब पूछा गया कि आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हो, you know what he replied? He said, I don't. I have right systems and I have talented people who use it and they make sure that the juniors also follow. मेरा काम तो सही सिस्टम और सही बंदे लगाना है, वो बाकी खुद ब खुद कर देते हैं। आर वी क्लियर? तो आपके जो कंधे पे इतने सालों से आप जो भार उठा के चल रहे हो, उन कंधों को थोड़ा सा ढीला कर दो। एग्री? और एक चीज और याद रखिएगा बिफोर आई गो फर्दर ऑन सेल्स ऑटोमेशन एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑटोमेशन, एक चीज याद रखिए, यू हैव गॉट वन लाइफ। एग्री? एक लाइफ आपको भगवान ने दी है। तो जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, इट इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज अ ब्लेसिंग, कि आप अपना कर्म भी करते जाओगे और साथ में आपको टाइम मिलेगा अपनी वो लाइफ को एंजॉय करने के। How many of you connect with this thought? Raise your hand. ये हमेशा याद रखिए कि हर इंसान जो आया है वो जाएगा, पर you need to fulfill other duties as well. Friends, family, health. अगर बिजनेस को ही आपने सब कुछ मान लिया है तो there is something wrong with you. Agree? तो आपको बैलेंस बना के चलना है, और बैलेंस बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करना है। सो ये टास्क डेलीगेशन सिस्टम कैसा लगा आप लोगों को? गुड, ओके। नाउ गो टू माय एप्स। अब सेकंड प्रॉब्लम सबसे बड़ी आफ्टर टीम मैनेजमेंट इज सेल्स। कितने लोग जो सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं? रेज योर हैंड। अब सेल्स में आप लोग रेफरल्स, एक्सपो, यस और नो, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, रिपीट ऑर्डर। अब क्या होता है, क्या एक गाड़ी इंजन के बिना चल सकती है? चल सकती है। आप गाड़ी को उठाइए, 4 लोग उठाएंगे और पैदल चलेंगे। अगर आपके बिजनेस में एक CRM नहीं है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो आपके बिजनेस की गाड़ी भी ऐसे ही चल रही है। कितने लोग जिनके पास अभी कोई अच्छा CRM सिस्टम नहीं है? रेज योर हैंड। I'll just give you glimpse of the USP of the system. एक बार इंटीग्रेशन पे जाइए, पहले इंटीग्रेशन पे जाइए, कस्टमाइज पे जाइए। So when it comes to the CRM system, customize. So by the way, this system gets integrated with Facebook, Google Form, India Mart, Trade India. आप कहीं से भी इंक्वायरी आ रही है, सीधा इसमें फीड हो जाएगी। और यहाँ पे जस्ट लाइक टास्क डेलीगेशन, हमने यहाँ पे भी हर इंडस्ट्री के रेडीमेड पाइपलाइन का टेम्पलेट दे दिया। एक बार मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करो। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? इंक्वायरी आई, डिस्कस हुआ, प्रपोजल भेजा, नेगोशिएशन हुआ, एंड देन प्रोडक्शन स्टार्टेड, टेस्टिंग, डिलीवरी, पेमेंट, रिसीव। वो स्टेजेस आप सारी यहाँ पे बना सकते हो। इसको क्लोज कीजिए, एक बार फनल पे जाइए, सीधा फनल। दिस इज वेयर जो भी आपके पास इंक्वायरीज आती हैं वो आप इस सिस्टम पे मैनेज कर सकते हो। अभी सेल्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बताइए? यस, आप बताइए। व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज इन ग्रोइंग योर सेल्स? सॉरी, फॉलो अप। ओके, व्हाट अबाउट यू? सबसे बड़ी दिक्कत
कंपटीशन, ओके। व्हाट अबाउट यू एट द बैक? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हाँ? एक्विजिशन, राइट। सो मैं आपको बताता हूँ, एक पर्सन का नाम लिखिए। There is a book called Spin Selling, SPIN, Spin Selling। अगर आप B2B बिजनेस में हैं तो ये बुक आपको और आपके सेल्स टीममेट को पढ़नी चाहिए। इस बुक में B2B बिजनेस बड़ी डील्स कैसे क्लोज करे उसका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे बड़ा चैलेंज सेल्स में क्या आता है, आप फॉलो अप नहीं कर पाते, हाँ या ना? और जब आप फॉलो अप नहीं करते हो तो आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसकी नज़रों में आपके ब्रांड की वैल्यू कम हो जाती है। पर अगर आप फॉलो अप करते हो तो दे रिस्पेक्ट यू मोर, हाँ या ना? मुझे अगर कोई मेरा वेंडर बार बार स्ट्रैटेजिक फॉलो अप करता है तो मैं पता क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यार कि लूँगा तो आप ही से लूँगा, गेटिंग इट? या तो मैं ले लेता हूँ, या फिर अगर मुझे पता है मुझे लेना है, अगले महीने लेना है, तो मैं बोलता हूँ लूँगा तो आप ही से ही लूँगा, राइट? तो लेट मी शो यू इस टूल के थ्रू व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग करके अब कैसे एक साथ सैकड़ों कस्टमर से फॉलो अप ले सकते हो। सबसे पहली चीज, प्लस लीड पे क्लिक कर दो। यहाँ पे एक लीड फॉर्म है, इट इज मोबाइल कंपेटेबल। कोई भी इंक्वायरी आती है मैनुअली भी भर सकते हो और ऑनलाइन भी आ जाएगी। जब आप इंक्वायरी भरते हो, क्लोज इट, क्लोज इट, क्लोज कर दो। आप अपने टीममेट को असाइन कर सकते हो। एक बार ओपन द इंक्वायरी ओपन कीजिए। यहीं पे आपका टीममेट उस कस्टमर को ईमेल भेज सकता है। गो टू ईमेल सेक्शन, यहीं से ईमेल डायरेक्टली, यहीं से आपका टीममेट कस्टमर को व्हाट्सएप भेज सकता है एंड आपका टीममेट उस लीड के साथ कुछ भी कर रहा है वो ट्रैक होता है टाइमलाइन में। गो टू टाइमलाइन। अभी एक चीज बताइए दिल से, आपने अपने टीममेट को 50 इंक्वायरीज दी, क्या आपको जेन्युइनली पता चलता है कि उसने कॉल किया या नहीं किया, ईमेल किया या नहीं किया, फॉलो अप किया या नहीं किया, हाँ या ना? कोई आइडिया नहीं। आप बस उस टीममेट की जुबान पे बिलीव करते हो। एग्री? यही काम होता है मैनेजर का, जो बस मैनुअली मैनेज करता है, इसीलिए पूरी जिंदगी मैनेजर बन के रह जाता है। जो रियल एंटरप्रेन्योर होता है वो कहता है कि आप जिस क्लाइंट से जो भी डील कर रहे हो वो इस सॉफ्टवेयर में अपने आप कैप्चर हो जाए। तो आपको पता चलता रहता है किस टीममेट का क्या क्या स्टेटस चल रहा है उस क्लाइंट के साथ। आर वी क्लियर? गो बैक। अब यहाँ पहले से ये इंक्वायरी थी, इस इंक्वायरी ने बोला कि मुझे आप प्रपोजल शेयर कर दो, तो यहीं से इंक्वायरी उठा के हम दूसरे टैब में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से गए और वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यूजुअली और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, ज़ोहो CRM इज गुड, उसमें भी फंक्शनैलिटी है, पर इसमें एक खासियत है कि आपका टीममेट जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाएगा तो उसको रिमार्क्स एंटर करने पड़ेंगे, उसके बिना वो दूसरा स्टेज चेंज नहीं कर सकता। एंड बिकॉज रिमार्क्स भरेगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बात चल रही है। क्लियर? अब लेट्स से आपके पास, ये देखिए ध्यान से, प्रपोजल शेयर्ड में लेट्स से आपके पास 20 कस्टमर हैं। कितने 20। और आपको पता है क्रिसमस आ रहा है, आप अपने कस्टमर को एक स्पेशल ऑफर देना चाहते हो, पर आप ऑफर व्हाट्सएप के थ्रू भेजना चाहते हो। तो ध्यान से देखिए आप कैसे स्क्रीन पे, एवरीवन आप यहां से क्लिक करोगे और एक साथ आप सारी लीड्स को चूज करके एक साथ व्हाट्सएप भेज सकते हो, और वो भी उस पर्टिकुलर स्टेज की इंक्वायरीज को। आर वी क्लियर? वन ऑफ माई कस्टमर had a revenue of 2 crore rupee a year 6 years back. Last year he closed it at 400 crore. ट्यूलिप इंफ्रा, गूगल कर सकते हैं ट्यूलिप इंफ्रा। 2 चीजों पर फोकस किया, जितनी भी टीम है टास्क एलिगेशन, सेकंड जितनी भी सेल्स टीम है सेल्स CRM। एक बार जल्दी से अपना मोबाइल निकालिए एवरीवन,
एक बार अपना मोबाइल ओपन कर लीजिए पीपीटी पे जाओ. So just open the second one, fourth slide. So this Tuesday, I am going to help all of you set up task delegation system. How many were ready to get the freedom from day-to-day follow-up? Raise your hand. So एक बार इसको जल्दी से स्कैन कीजिए and quickly register for this workshop. This workshop is paid. However, credit goes to Vyapar Expo that all of you are able to register for this workshop absolutely complimentary. So quickly go ahead, take a minute and register. और जब register कर लो, just raise your hand that you have registered so that my team knows. Just quickly take a minute and register for the workshop. Quickly you can register for the workshop so that Tuesday को आप और मैं मिलेंगे and I'll properly help you implement all these systems. जब आप रजिस्टर करेंगे आपको WhatsApp आ जाएगा और वहां पे आपके पास एक रजिस्ट्रेशन का लिंक भी होगा. How many of you done it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. जितने लोग चाहते हैं कि यार मेरा टीम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं एक दिन में 4-5 घंटे बचाता हूँ, आ जाइए इस वर्कशॉप में and I'll be able to brief it in such a way कि आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे. Not with motivation. याद रखिए, you don't need any motivation. What you need is automation, right? Because इंडिया में मोटिवेशन ऑलरेडी मोदी जी ने बहुत दिया हुआ है. Yes or no? क्या मोदी जी से बड़ा कोई मोटिवेटर है? नहीं. आपको क्या चाहिए? आपका जो कर्म है वो है अपना बिजनेस बिल्ड करना, हाँ है ना, कस्टमर को खुश करना और इंडिया में जॉब्स क्रिएट करना और प्रॉफिट्स बनाना और फ्यूचर में आईपीओ लॉन्च करना. सो कम टू दिस वर्कशॉप so that you can learn on how to get freedom from day-to-day firefighting. Done. एक और क्विक मुझे जल्दी से बताइए, आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? Was it good? So what we can do? I'm going to just quickly. I'm going to record a 30-second video which I'm going to put on Instagram. All of you एक बार Instagram open कर लीजिए, everyone. You can search KEWALKISHAN_coach. Follow me. I'm going to put a video and you can share that as well. So I'm going to just record a quick video. I want you to share, come with your energy, the kind of learning that you had today. Automate Business. Can we have a standing ovation for him? Vyapar Expo, organized by Vyapar Zone, is proud to have you over us. It was a great learning and insightful session. I request Keval sir to be here and request Jitendra Lakhotia and Nitesh Kejriwal along with co-founders to be on stage for making it a promise. And Mrs. Anita, the first lady from Automate Business, please be on stage to facilitate, sir. मजा आया कि नहीं आया? Thank you. Can we have the award, please? Facilitate, sir, this small token of love. Hello. If my team can also come on stage, I would like to have a Automate Business. for my team. All the team of Automate Business, please spare 1 minute over the stage. I don't need clapping for me, I need clapping for my team, जिन्होंने बहुत अच्छे ऑटोमेशन सिस्टम बनाए हैं और 10,000 से ज़्यादा एमएसएमईज को बेनिफिट मिल रहा है. So my team, please come on stage. I'll also request Pratana Kalwar to facilitate with a small token of love for the stage to Automate Business.
Delhi and presenting and making us learn how we can automate a business and save more time and generate more income. We look forward to have great one-to-ones with you over the due course of time. Just to announce, Cable Sir's stall is just behind the lounge and he is available till tomorrow evening with us. So make sure we have the best time with us. I would also like to invite Mr. Ajit Jain, President of X-Avid, to the stage to facilitate. Deepu Sharma ji, representing Hitachi Industries. Sandeep Agarwal from Odd Jobs and President of DIA, Bhijen Joshi ji. I request all the delegates and dignitaries to kindly come forward on stage.